अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। So today we will start from हाँ हाँ कौन सी ध्यान करनी है हमने 6 पॉइंट ओके ओके चलो हम 6.6 from examic point of view very important term है। हाँ तो term is the ratio of areas of two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles, two similar triangles is equal to the ratio of is equal to the ratio of the squares their corresponding sides. We are given two triangles. Suppose we take two triangles, triangle ABC. Let us take two triangles, triangle ABC और दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल लेट इट बी ट्राइंगल PQR या DEF भी ले सकते हैं और वी कैन टेक इट एज DEF। ठीक है बेटा। As per question we are given that the ratio of areas of two similar triangles, तो यहाँ पे दिया गया है these two triangles are similar, therefore we can say that triangle ABC is similar triangle DEF, and we have to determine the ratio of areas. When there comes the word area, we know that area of a triangle is equal to हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बाई कॉन्स्ट्रक्शन हमने इनके दो ऑल्टीट्यूड्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बेस इनटू हाइट या बेस इनटू परपेंडिकुलर यहाँ पे एग्जिस्ट हमें नहीं दिखता है, तो दैट मींस बाई कॉन्स्ट्रक्शन वी हैव टू टेक दैट वेरी ऑल्टीट्यूड। तो तब जाके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एंड वी नो वी आर गिवन दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय टर्म्स दैट आर डिस्कस्ड अर्लियर। we know that two triangles are similar if their corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in equal proportion. Then when their two corresponding sides are in equal proportion, including angle is equal, they are also similar. Therefore, अगर ये दो triangles similar हैं, तो इनके corresponding angles भी बराबर होंगे, इनके corresponding sides in equal proportion होंगे, इनके दो corresponding sides और उनका included angle भी included angle बराबर होगा और sides will be in equal proportion। ठीक है बेटा। Therefore, we can say that हाँ तो टू प्रूव हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी एफ इक्वल्स टू ए बी बाई डी रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज ए बी बाई डी स्क्वायर ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ स्क्वायर एंड बी सी बाई ई एफ स्क्वायर। तो मैंने कहा कि हमें गिवन क्या दिया गया है, शाबाश, वी आर गिवन दैट triangle ABC is similar triangle DEF. Clear? That is AB divided by DE equals to BC divided by EF equals to AC divided by EF. AC divided by DF. Sorry. Okay. AC by DF. Clear? हो गया वो। चलो तो प्रूव क्या करना हमने, और हम ये भी लिख सकते हैं also एंगल B equals to एंगल E, एंगल A equals to एंगल D। ये सलमा शमस अपने हाँ एंगल C equals to एंगल F, एंगल B equals to एंगल E। आप चुप करके रहो, नो लिसन। एंगल ए डी के बराबर होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है बेटा। चलो बेटा, तो प्रूव हमने करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव,
area of ABC divided by area of DEF equals to AB divided by DE square equals to BC divided by EF square equals to AC divided by DF whole square. क्लियर? मैंने अभी कहा हमने कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन draw AM and DN perpendiculars on sides BC and EF of triangles ABC and DEF respectively. तो हमने क्या काम किया? हमने क्या किया? AM हमने ऑल्टीट्यूड ड्रा किया BC पे इन ट्रायंगल ABC एंड DN हमने ऑल्टीट्यूड ड्रा किया टू द साइड EF ऑफ ट्रायंगल DEF. ठीक है बेटा? Therefore proof. We know that हाँ हमें पता है कि एरिया ऑफ ABC equals to half of base into height या base into altitude. That is area of ABC equals to half of base यहाँ पे है BC into height है DN sorry DAM. This equation first. Also area of DEF equals to half of base है यहाँ पे EF into height है DN. This is second. तो क्या काम करेंगे हम? तो रेशियो कैसे आएगा? जब हम इनका डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग या ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट by equation second we get that is area of ABC divided by area of DEF equals to 1/2 of BC into AM whole divided by 1/2 of EF into DN. ठीक है बेटा? हाँ 1/2 gets cancelled. ठीक है? और we can write as area of ABC divided by area of DEF equals to BC by EF into AM divided by DN. तो और इसको हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं. चलो बेटा. और we can write it as area of ABC divided by area of DEF equals to BC के बाद हम लिख सकते हैं AB divided by EF into AB divided by DE sorry AB divided by DE किसके बदले? BC by EF into AM divided by DN. बिकॉज हमने क्या काम किया? ए बी डिवाइडेड बाई डी ई ने रिप्लेस किया बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, क्योंकि हमें पता है दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देयरफॉर ए बी बाई डी इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ. ठीक है बेटा? शाबाश. तो लेट अस टेक इट और वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ ABC divided by area of DEF equals to AB divided by DE into AM divided by DM. देखो बेटा अब हमने क्या यहाँ पे करना है? हमें AB by DE स्क्वायर आना चाहिए या ऐसे यहाँ पे जो हमने लिया था BC by EF स्क्वायर आना चाहिए. तो स्क्वायर कैसे आएगा? अगर यहाँ पे और एक AB by DE आएगा. ठीक है ना?
तो अगर हम दो ट्रायंगल दे रहे हैं, इफ वी टेक टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए बी एम और डी ई एन, अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर पाए तो तब जाके इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड दे मस्ट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो तब जाके ए बी बाई डी किसके बराबर आएगा, शाबाश, ए एम बाई डी एम। तो वहां पे फिर हम यहाँ पे ए एम बाई डी एन को रिप्लेस करेंगे ए बी बाई डी से, तो हमारा ये स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमें पता है ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ के बराबर है, वो किसके बराबर, ए सी बाई डी एफ के बराबर है, तब जाके हम इस ए बी बाई डी को वहां से भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग दीज ऑल इक्वेशंस वी कैन से दैट देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना। इफ वी टेक ट्रायंगल, कहाँ से, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय ट्रायंगल डी एफ इक्वल्स टू ए बी बाई डी, क्लियर हुआ ना, ए बी बाई डी है। अब हमें यहाँ पे ए बी बाई डी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, अगर ये ट्रायंगल हम लेंगे, इस बड़ी वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी को हमने, सॉरी, ए एम बाई डी एन को रिप्लेस हमने करना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी बाई डी, तब जाके ये स्क्वायर बनता, क्लियर। अगर इसकी बात की जाए, ए एम बाई डी एन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ए बी बाई डी होना चाहिए था, तो तब जाके ये ए बी बाई डी का स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना बेटा। तो हम क्या काम करें, हम उन दो ट्रायंगल्स में जाएंगे जहां पे ए बी बाई डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा और ए एम बाई डी एन भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो वो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमारे पास है, ए बी एम और डी ई एन, दो ट्रायंगल जब हमारे पास हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इन दो ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए, तो अगर ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर कर पाए, तो उस वक्त हम कह सकेंगे कि ये ए एम बाई डी एन होगा बराबर ए बी बाई डी, तो तब जाके हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट अस टेक एज इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम टेक कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर, शाबाश। नाउ अब हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, ट्रायंगल्स ए बी एम एंड ई ई एन, वी हैव इक्वेशन थर्ड, हाँ सेकंड थर्ड, चलो ठीक है, क्लियर। हाँ, ए बी एम डी एन, ठीक है ना बेटा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, बिकॉज, एक मिनट, वेट, एंगल बी एंगल ई, अब मेरा सुनो, ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई बिकॉज गिवन एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन बिकॉज each 90, therefore triangle ABM is similar triangle DEN by एंगल SC, ठीक है बेटा। दैट इज, तब जाके हम कह सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल्स टू ए एम बाई डी एन बाई, ये सलमा, सलमा का वो, सलमा शमस है ना, आप ये ना अपनी वो माइक बंद कीजिए, हो गया। ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू ए एम बाई डी एन बाई सी पी एस टी, तो यहाँ पे हम नाउ पुट, now put AM divided by DN equals to AB divided by DE in equation third we get, ठीक है बेटा। तो वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ABC divided by area of DEF equals to AB divided by DE into, इस AB AM by DN के बदले भी हम AB by DE यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा पुट AM by DN equals to AB by DE, क्या है, ओके। तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी एफ इक्वल्स टू ए बी बाई डी, हमने इस ए एम बाई डी एन को रिप्लेस करना है इसी ए बी बाई डी से, इतना समझ आया ना, डी ई, बात समझ आए। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी
divided by area of DEF equals to AB into AB हो गया AB square D into D हो गया DE square that is AB by DE whole square बेटा समझ आया this is equation 4 similarly हम ये भी ले सकते हैं हम similarly area of ABC divided by area of DEF या similarly नहीं ले सकते अब हम ऐसे भी लेंगे ये AB by DE किसके बराबर है BC by EF इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर फिफ्थ यहाँ पे आप कंडीशन लिख भी सकते हो तो कैसे है ये ठीक है ना बेटा ऑल्सो और एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल्स टू बी सी बाई एफ किसके बराबर है ए सी बाई डी एफ ये ए सी बाई बिकॉज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर जैसे कि यहाँ पे दिया गया था ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ ठीक है ना बेटा तो यहाँ पे हम इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज ए सी बाई डी एफ AC by DF whole square. This is equation 6. Now comparing equation 4, equation 5 and equation 6 we have. Yeah, we get. ठीक है बेटा तो that is तो वो हमारे पास क्या आएगा therefore we can say that area of ABC divided by area of DEF equals to AB divided by DE square equals to BC divided by EF square equals to AC divided by DF square. We can see that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the area is equal to the ratio of the square of the corresponding sides. ठीक है ना बेटा शाबाश क्लियर हुआ किसी को कोई प्रॉब्लम रिपीट करने की कोई जरूरत मत है हर कोई भी कह सकता है रिपीट करने की कोई जरूरत है मैं फिर से रिपीट करूँगा तो आगे बढ़े फिर चलो बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 ये सलमा शामस कहीं पे थी ना नीचे का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए है कहीं पे सलमा शामस एक्सरसाइज ग्रुप लैब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 पढ़ लीजिएगा तेरा मैथ नहीं है तो एग्जाम भी नहीं चलो अदील उन निसा अब अबरार आप चुप कर दो अबरार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है अदील उन निसा अगर कहीं पे है क्या हाँ मीडियन एक एंगल से हम ड्रा कर रहे हैं तो जिस साइड पे वो पड़ता है तो दैट साइड गेट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स टू इक्वल पार्ट तो ऑल्टीट्यूड की बात की जाए जरूरी नहीं है कि मीडियन जब भी ड्रा हम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा ठीक है ना बेटा तो जब ये परपेंडिकुलर हम ड्रा करें ये जरूरी नहीं है वो हो भी सकता है परपेंडिकुलर लेकिन हो भी नहीं सकता उसके लिए जरूरी नहीं है लेकिन जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किस पे ऑल्टीट्यूड ड्रा करते हैं ट्रायंगल पे तो ये जरूरी नहीं कि जो जिस साइड पे वो पड़ता है वो दो साइड्स इन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड वो साइड इक्वल पार्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ठीक है ना बेटा जब होगा तब देन वी कैन से दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बशारत क्लियर चलो बशारत आप ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिएगा 6 मैथ ब्रेकिंग ना हाँ हाँ, रुक जा ट्रायंगल
ABC similar triangle DEF. Of we are given that triangle ABC is similar triangle DEF. ठीक है बेटा? ये है हमारे पास triangle ABC similar triangle DEF और इसी के साथ दिया गया है and their area respectively. Area of ABC equals to बस चुप करके रहो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर and area of DEF equals to 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारे पास दिया गया है हाँ EF इक्वल्स टू EF क्या है हमारे पास 15.4 फाइंड BC तो फाइंड हमने करना है टू फाइंड BC ठीक है बेटा हम यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं या सोल्यूशन भी लिख सकते हैं वी आर गिवन दैट देखो बेटा हमें दिया गया ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF अभी थॉम हमने की देयरफॉर एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF इक्वल्स टू हाँ इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड हमें दिया गया अब चुप नाउ लिसन हाँ we are given that area of therefore area of triangle we are given that triangle ABC is similar triangle DEF when two triangles are similar therefore the ratio of the two areas of two similar triangles is equal the ratio of the areas ratio of the square of their corresponding sides तो तब जाके यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होगा AB बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू BC बाई EF स्क्वायर इक्वल्स टू AC बाई DF स्क्वायर तो हमें यहाँ पे एक ही साइड निकालना है दैट इज BC EF दिया गया तो हम इसी इन्हीं दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर भी ले सकते हैं ठीक है बेटा देयरफॉर एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ DEF किसके बराबर होगा BC डिवाइडेड बाय EF होल स्क्वायर क्लियर तो एरिया ऑफ एबीसी हमारे पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी तो बीसी वी हैव टू फाइंड होल डिवाइड बाय ईएफ दिया गया है दैट इज 15.4 सेंटीमीटर क्लियर तो इसका पूरा एज पर क्वेश्चन स्क्वायर के बराबर है ठीक है वी आर गिवन दैट 3 हो गया 64 तो एक बात समझ आई और वी कैन राइट क्या बेटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 11 सेंटीमीटर सेंटीमीटर होल स्क्वायर हम ले सकते हैं ठीक है इक्वल्स टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसल्ड इक्वल्स टू BC स्क्वायर डिवाइड बाय 15.4 सेंटीमीटर ठीक है और वी कैन राइट इट एज 8 बाय 11 इंटू 15.4 स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर ठीक है बेटा और BC स्क्वायर किसके बराबर है 8/11 इंटू 15.4 स्क्वायर और इसके साथ सेंटीमीटर ठीक है मुझे लगता है कि इसके आगे ये आएगा तो इसका आंसर निकालना ठीक है तो बात समझ आई तो इसका आंसर आएगा 11.2 के बराबर बात समझ आई हाँ क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स हम कल करेंगे तो रिगार्डिंग आज का जो जितने जो हमने किया जो हम किया या ये क्वेश्चन किया तो कोई किसी को कोई क्वेश्चन इसके बारे में लास्ट 2 मिनट बचे हैं। समझ आ रहा है अब हम टीच में थ्रो कंटिन्यू करें या फिर से हम यूट्यूब क्लास में चले जाएं अच्छा ये इस वक्त एनरोल्ड 110 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 10 ओनली 69 और 68 एक ने फिर से लेफ्ट किया 68 स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास
अंजम मिर्शाद ने ये कमेंट किया ये, कल भी मैंने आपको बताया था कि एसएमएस मत कीजिएगा, ठीक है? रिमेन कॉशियस। ये क्लास आपकी चैटिंग के लिए नहीं है बेटा, जितना हो सके फायदा उठाओ इससे। हाँ, और एग्जाम्स के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम्स बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है ना? हमने पेपर आपका निकाला है, पेपर हमने सबमिट किया है, तो वेरी शॉर्टली यू विल बी इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग योर डेट शीट। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि आज से असाइनमेंट थोड़ा सा कम डालेंगे आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। और ये भी जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, या जो भी क्लास यहाँ पे ले रहे हो, तो इसकी आप, मुझे पता है कि आई होप कि काफ़ी साथ साथ बनाते होंगे, या इसकी भी आप ट्राई करते होंगे, ठीक है ना? बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। तो एग्ज़ाम मैंने, जो पेपर मैंने सबमिट किया है, दैट इज़ अप टू यूनिट नंबर 5 फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर फर्स्ट तो यूनिट 5 तक, जो आपका जितना भी सिलेबस कवर होता है, तो उसमें आपके 50 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो इसलिए अगर कहीं भी किसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल करना। तो आपकी फिजिक्स क्लास, अभी मुझे पता नहीं कि उनका फ़ोन ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो केमिस्ट्री क्लास में ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके, ओके, हैव अ नाइस डे, ठीक है?